जय गुरु जी। प्यारी संगत को प्रणाम। आज full blessing of Guru ji I could experience. So we are lucky and blissful. Wonderful sangat also, and there were I had a great experience inside also. Seema aunty gave me the privilege to through Guruji's grace only. I'll continue it, but what I'm impressed with Seema aunty is right now the message she has given. बहुत बढ़िया मैसेज दिया उन्होंने। मैं ये कहता हूं कि Guruji's will prevail. Whatever Guruji does, that is final. Not our efforts are useless before Guruji. So what was in that Shabad also, and Seema aunty mentioned, we should do everything in the name of Guruji. उनसे कहा, अरे राजा, ये तेरा राजपाट नहीं है, ये तो प्रभु का समझ के काम करो. So Guruji, grace will prevail, Guruji's will prevail. And what we can do to earn Guruji's grace is by humility, love and compassion should be our nature. हम अपना बर्तन, let our pot be immaculate, spotless, so that we can receive the grace of Guruji. Jai Guruji. Was very impressed by Seema auntie's wonderful experience, morning experience. Now, Guruji, we are very lucky, very fortunate. We are under the protection of Guruji. We are under Guruji's grace. We have come here. ये भी हमारा कुछ खास कर्म है. उसी कर्म से हम यहाँ आए हैं. And every day there are miracles, छोटे miracles, बड़े miracles. Seema aunty ji, I remember last time I came here, a few years back, I think, a young girl said that, Jai Guruji, I have something to share. I said, what? I said, when I come here, I am worried about parking. I should get parking. Now, today also I was worried, and Jai Guruji, I got the parking. I told her, Beti, Guruji satisfies our small demands also, our big demands also. It is nothing but Guruji showing his presence, his grace, and his love. In fact, I am from Delhi. So before coming here, one of our daughter-in-law, she said, she shared a satsang, she said, her close friend in Noida, every Monday she will take a train with this metro, and in Chhatarpur station, she will get down on Monday, and then there will be a shared auto. Guruji ka mandir. That day she did not find any auto. They say, auto wala, no, hum nahi jayenge ji, sawari nahi milti hai wapas, so we will not go to mandir tak nahi jayenge. Then somebody said, okay, हम मेन रोड तक ड्रॉप करेंगे आपको, बस आपको आगे वापस जाना है. फिर जाना, बोला चलो ठीक है, मैं पैदल चलूँगी मेन रोड से. शी वेंट बराबर मंदिर तक ड्रॉप किया उन्होंने, ड्रॉप किया, एंड शी केम आउट. बोला ये जो थे आपके साथ संत आदमी, संत पुरुष, ये कहाँ गए? बोला कौन से संत? जो आपने लॉकेट पहना ना, यही संत पुरुष, ये तो आपके साथ बैठे थे, उन्होंने मुझे कहा कि इनको ड्रॉप करो. ये कहाँ गए? So this is how Guruji is with us, how Guruji protects us. And we were here in 2 years back, we had come here, and Dheeraj auntie from Irvine, she requested that we should come for Guruji's birthday celebration to Irvine, Orange County. It was 6.25 घंटे की flight, लंबी flight. And she was nice, she said ticket for me and my auntie also. We went. We reached on 6th morning, Orange County. She said, yeah, Sangat wants, tomorrow is a celebration, great day, Guruji's birthday. But Sangat wants to know about Guruji. You have a personal experience with Guruji. Can we, I have requested them, can we organize a satsang on today at 6 p.m.? I have called them. So you just explain how Guruji was doing, how Guruji's life. And I said, okay, no problem. Exactly, there was a huge gathering in their compound. I was about to say, I said, Jai Guruji, a huge eagle came in their compound. I think I have sent you a picture of that also. A huge eagle. I said, eagle, yahan bole, sir, we are here for 16 years. This is first time. Then everybody said, Jai Guruji, and eagle went away. And of course, then up to 11 p.m., the satsang continued. Every day there are miracles. And as per, I want to tell you must know what हमारे गुरुजी क्या थे. Guruji used to tell that you should read Shiv Puran. As per Shiv Puran,
लॉर्ड शिवा सेज व्हेन देयर इज डिक्लाइन ऑफ धर्मा, जब जब धर्म की हानि होती है, आई कम इन द ह्यूमन फॉर्म टू एनलाइटन द पीपल, लोगों का कल्याण करने आता हूं मैं। वो हमारे गुरु जी थे। दिस इज आवर बेसिक थिंग। इनफैक्ट दोज हु आर फेमिलियर विद भगवद गीता, इन सेकंड अध्याय से यदा यदा ही धर्मस्य कल्याणम भवेत बात, यू नो, आई एम फ्रॉम कश्मीर, मैं कश्मीरी पंडित हूँ, सो वी आर लिटिल फेमिलियर विद उर्दू। देयर इज अ ब्यूटीफुल ट्रांसलेशन ऑफ दिस पैरा इन उर्दू। देयर इज अ वर्ड कॉल्ड तनजुल। तनजुल मीन्स डिक्लाइन। कहते हैं तनजुल पर जिस वक्त आता है धर्म, अधर्म आके करता है बाजार गरम। अरे ये अंधेरा जब देख पाता हूं मैं, तो इंसान की सूरत में आता हूं मैं। जय गुरु जी। नाउ आई विल डिस्क्राइब, यू नो, द गुरुजी's, the satsang, Guruji's Leela, everything. I'll talk about it. But first, you know, what is very important is, in every Guruji used to give us great truths of life in a very, very simple way. And secondly, I am also equally fascinated with Shabad Leela. Shabad gives us all explanation to all our problems. In fact, Guruji used to tell Kalyan Kita, just a moment, Ash Karo, when Guruji used to, that was his way of blessing. And if you have read Shiv Puran, because I have read Shiv Puran. Shiv Puran says Lord Shiva continuously does 5 acts. पंचकृत, 5 क्रियाएं भगवान शिव करते हैं। वो क्या क्रिया है? फर्स्ट, ही हैज गिवन ड्यूटी ऑफ क्रिएशन टू ब्रह्मा, ब्रह्मा जी को दी है। फिर पालनहार कौन है? विष्णु को पालनहार की ड्यूटी दी है। फिर डिसोल्यूशन, विड्रॉवल, रुद्र को दी है। फिर भगवान शिव की 2 और क्रियाएं करता है। क्या करता है? उसको बोलते हैं तिरोधान क्रिया। चौथी क्रिया को तिरोधान क्रिया, दैट्स कॉल्ड हाइडिंग। भगवान छुप जाता है, तमाशा देखता है, क्योंकि हर सब शिव हम भगवान का ही रूप है। ये जो मेरा है, तेरा है, काम, क्रोध, मैं हूं बहुत बड़ा आदमी, ये मेरा काम है, ये जो अहंकार, सब कुछ, ये एक विलय अनुग्रह शक्ति, वही भगवान का रूप शक्ति देता है संसार में उलझाने के लिए, ये तमाशा देखने के लिए। इस कहते हैं ये भगवान शिव ने महेश को दिया है ड्यूटी, और आखिरी ड्यूटी अपने पास रखा है, वो दैट इज कॉल्ड अनुग्रह, ब्लेसिंग टू रियलाइजेशन। तो गुरुजी क्या करते थे? कल्याण कीता और ऐश करो। दिस वॉज द पावर ऑफ गुरुजी। यू कैन सी द हाइट ऑफ क्या गुरुजी की क्या स्टेटस था। तो दिस वॉज सेकेंडली, अभी मेरे मन में आता है, गुरुजी का वेरी पॉपुलर था, विच इज वेरी रेलिवेंट अस। कहते हैं कि मांगो नहीं मनो, डोंट आस्क फॉर। जैसे हम स्मॉल थिंग्स, हम ऐसे पागलपन की तरह, ये आज मुझे ये चाहिए, कल मुझे वो चाहिए, परसों मुझे वो चाहिए, टेम्पररी सुख टेम्पररी दुख में हम उलझ के रहते हैं। गुरुजी ने कहा था, हैव फेथ इन मी, ट्रस्ट मी एज आई एम द डूअर। जो मैं पहले भी कहा, जो सीमा आंटी को भी, शी हैज राइटली गाइडेड अस इन हर दिस मॉर्निंग रिविलेशन विद गुरुजी। तो क्या ये सत्संग, कमिंग बैक टू सत्संग, एक सत्संग था, कहते हैं कि मथुरा का एक राजा था, उसको भक्ति राजा बोलते थे। बड़ा नाइस किंग, शांत प्रिय, सब लोग खुश से आनंद में, सब प्रजा आनंद में थी। एक बार क्या, राजा एज हो गई, एल्डरली हो गए, बुढ़े हो गए राजा। तो उसने अपने मंत्री महफिल एक दिन बोला कि मेरी एज हो गई, मुझे अब गुरु धारण करना चाहिए। मुझे नहीं पता कौन सा गुरु है धारण करने लायक। सबने कहा, राजा एक ही गुरु बड़ा है आजकल, है संत रविदास, उससे बड़ा कोई गुरु नहीं है, उसको धारण करो। कुछ लोगों ने कहा, रविदास तो ही इज अ शू मेंडर, ही इज अ शू मेंडर। समहाउ ही वाज इंस्पायर्ड, ही गॉट इंस्पायर्ड, यस यही मेरा गुरु हो सकता है। राजा तेरी मर्जी। फिर बोला, अच्छा राजा, हम अरेंजमेंट करेंगे, आपको संत रविदास के पास ले जाएंगे। बोला, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आई डोंट नीड एनीबडीज हेल्प, आप शांति से बैठो। The राजा वेंट barefoot, नंगे पांव राजा संत रविदास के पास गए। तो रविदास वाज हाईली इंप्रेस्ड। बोला, अरे राजा तो बड़ा, मेरे पास नंगे पांव आया, तो वाह 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 राजा, कमाल हो गया, चलो मैं तेरा पूर्ण कल्याण करता हूं, मैं तेरा पूर्ण कल्याण करता हूं। दे राजा, दिस रविदास जी पिक्ड अप वन ऑफ दैट शू, दैट वाज डर्टी टब, है ना, जिसमें जूते वूते रखते थे वो, मतलब औजार वगैरह क्लीनिंग। He picked up
हाथ से बोला पी राजा, तेरा पूर्ण कल्याण हो जाएगा। अब राजा ने क्या कहा तो दे दिया उसने, ही जस्ट लूजन हिज शर्ट एंड ही लेट गो दैट वाटर। तो बोला अच्छा, तो अच्छा प्रणाम वनाम करके तो राजा चल आया वापस अपने महल में। सबने कहा राजा तेरी शर्ट इज डर्टी। तो राजा ने शर्ट निकाली, इट वाज गिवन टू रॉयल वॉशरमैन, धोबी के पास लेके गए। अब धोबी बोलता है राजा कभी बिल्कुल साफ कपड़े होते हैं राजा के, ये स्पॉट्स क्यों है? ही इज ट्राइंग टू क्लीन इट, साफ कर रहा है। उसकी बेटी वहां थी, बोला पिताजी आप परेशान क्यों, क्या हो गया? बोले राजा की तो कपड़े तो बिल्कुल साफ होते हैं, आज पता नहीं है निकलता नहीं है मैल डर्ट से। बोले जरा पिताजी मुझे दे दो। शी सक्ड दोस स्पॉट्स, शी सक्ड दोस स्पॉट्स, शी बिकेम ब्रह्मज्ञानी, शी बिकेम ब्रह्मज्ञानी। कहते क्या हुआ कि चक्षु खुल गया उसका। अब लोग उसके पास गए, धोबी के बेटी के पास, रियलाइजेशन। अब राजा पर बात पहुंच गई राजा के पास। बोला राजा आपके धोबी की बेटी ब्रह्मज्ञानी बन गई है। बोला कमाल हो गया। एंड देन राजा सेड लेट मी गो टू हर। राजा बेटी के पास गया, बोला बेटी तेरे को सब ब्रह्मज्ञानी बोलते, ये कैसे हुआ? बोले मुझे राजा कुछ पता नहीं है, कुछ नहीं पता मुझे राजा, आपकी कमीज थी वो पिताजी साफ करे हुए दाग निकल नहीं रहे थे, तो मैंने पिताजी को बोला चलो मैं कोशिश करूंगा, आई सक द स्पॉट्स, मेरे में ऐसा ही चक्षु खुल गया ज्ञान का। तो राजा अपनी रियलाइज मिस्टेक, मैंने क्या गलती की, ही भाग गया संत रविदास के पास के चरणों में गिर गया, बोला मुझे माफ कर दो। बोला राजा मुझे कुछ नहीं किया, ऊपर वाले का हुक्म था तेरा को पूरा पूर्ण कल्याण करना, चलो कोई बात नहीं, तू भक्ति करना, धीरे धीरे तेरा पूरा कल्याण हो जाएगा। दिस इज द ब्यूटी ऑफ डोंट मेक इफ एंड बट एंड संख्या मानो। तो लंबा सत्संग, आई विल शेयर फर्दर सत्संग ऑफ गुरु जी, लेट मी कम बैक टू पीपल विल थिंक दैट माई जर्नी विद गुरु जी। हाँ गुरु जी के साथ तो यू कैन शेयर देम। अगर आपने खाना अगर खाना भी देना, मतलब प्रसाद टाइम है ना अभी। अच्छा इट वाज, अच्छा द ईयर वाज 1989, वी वर ट्रांसफर्ड टू जालंधर। आई वाज रीजनल मैनेजर इन स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, आई वाज ट्रांसफर्ड टू जालंधर। तो मैं हार्डली 1-2 महीना हुआ था, आई सॉ एन एनवलप ऑन माई टेबल। मैंने एनवलप खोला, एक तरफ था भगवान शिव की पिक्चर, बैक में था गुरु नानक देव की पिक्चर, लिखा था ब्लेसिंग गुरुजी 300 डिफेंस कॉलोनी। मैंने कहा पता नहीं कौन से गुरुजी ने भेजा, क्या भेजा है। मैंने कहा चलो, सो व्हाट वीकेंड, मैंने कहा 300 डिफेंस कॉलोनी, वी वर लिविंग इन 37 ग्रीन पार्क, दोज आर फेमिलियर विद जालंधर, हार्डली आधा किलोमीटर था डिस्टेंस। मैंने कहा चलो वीकेंड में हम गए वहां। तो गए, गुरुजी को हमने देखा, व्हाइट पैंट, चकाचक रेड शर्ट, गुरुजी बैठे थे। बट इमीडिएटली ऑन माय फर्स्ट साइट, बिकॉज वी हैड अ लिटिल बैकग्राउंड ऑफ, हमारे घर में पिताजी से कश्मीर में जज, मिस्टिक्स, संत वगैरह आते थे। मैंने कहा ही इज अ सेंट ऑफ ग्रेट ऑर्डर। उसका ऑरा था गुरुजी का, चमक थी, अट्रैक्शन। मुझे याद आ गया वो बुले शाह का कलाम है, कहता जित पाया बेद कलंदर दा, राख खोजिया अपने अंदर दा, वो वासी है सुखमंदर दा। तो तब से हम जुड़ गए गुरुजी ग्रेस। तो रिकॉलिंग गुरुजी का जालंधर मंदिर में वो क्या होता था वहाँ, गुरुजी यूज्ड टू गिव जल प्रसाद। तो बड़ी थाली में छोटे छोटे स्टील के ग्लासेस है, एंड गुरुजी विल टेक आउट हिज रुद्राक्ष माला एंड अ डिवाइन फ्रेगनेंस विल गेट क्रिएटेड इन दोज प्रसाद, जल प्रसाद। देन हम ऐसे बैठे थे, तो कहते आ जाओ मेरी बारी कब आएगी, यू नो इट वाज अ ग्रेट क्यूरियोसिटी, मेरी बारी कब आएगी, गुरुजी विल गिव जल प्रसाद। एंड गुरुजी के मिरेकल्स बताता हूं मैं। जैसे हमारे घर आते थे, व्हाट विल हैपन, विल सी अ डिवाइन फ्रेगनेंस। मैंने कहा भाई कुछ मिरेकल होने वाला है। नॉर्मली क्या गुरुजी क्या हाल जी यह है, सडनली गुरुजी विल डू लाइक दिस, एंड हाथ में बताशा, बर्फी वगैरह, डिवाइन प्रसाद विल क्रिएटेड, देन यू नो समबडी विल पिक अप, आंटी वगैरह फिर सबको बांटती थी। इसमें अलग अलग मिरेकल से गुरुजी के। एक बार नॉर्मली क्या होता था,
जो पुरानी संगत को पता है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे गुरुजी वुड नॉट हैव एनी सॉलिड फूड, लिक्विड फूड ही खाते थे। फिर थर्सडे फ्राइडे सैटरडे कहीं ना कहीं हम जाते थे गुरुजी के साथ, कभी लुधियाना, कभी फगवाड़ा, कभी जलंधर में भी कहीं, कभी चंडीगढ़ नहीं जाते थे इतना, ऐसे जाके तो शाम को आते थे हम। तो एक बार क्या हुआ, नॉर्मली हम संडे को इन्वायरेबली विल बी लॉन्ग टाइम इन गुरुजी मंदिर में बैठते थे। कभी हम नॉर्मली वहीं प्रसाद भी लेते थे, कभी कभी हम घर में लंच करके जाते थे, फिर लेट बैठते थे हम गुरुजी के मंदिर में। हम लंच करके गए गुरुजी के मंदिर में, तो गुरुजी बैठे, बोला इनको हेमा आंटी, ठेठ पंजाबी में बात करते थे, प्रसाद चखो। बोला गुरुजी अभी खाना खा के भूख नहीं है गुरुजी। बोला खाओ प्रसाद चखो। बोला गुरुजी भूख नहीं है। बोला भूख नहीं है, तुम लोग कश्मीरी हो, तुम लोग चावल खाते हो, जो चावल खाते हो वो चुगली करते हैं। गुरुजी ग्रेट ट्रूथ इन सिंपल वे, चखो प्रसाद। बोला गुरुजी भूख नहीं है। गुरुजी गेव जल प्रसाद लिटिल बिट, विद इन 5 minutes she said गुरुजी मुझे भूख लगी, एंड शी हैड कम टू कंप्लीट प्रसाद। एंड गुरुजी के बहुत मिरेकल्स हैं, बट आई एम वेरी मच इम्प्रेस विद गुरुजी एज ए ग्रेट ह्यूमन नेचर। ये हमसे सीखना है, गुरुजी से सीखना है। एक बार क्या हुआ, हम बैठे थे, हमें जाना था फगवाड़ा, जलंधर से फगवाड़ा। तो फ्रंट में एक गाड़ी का चला रहे थे, ये बैठे थे गुरुजी, हम पीछे बैठे थे, 2-3 थे पीछे। तो सडनली व्हाट ही सेड ऑन दिस हाईवे, जो जलंधर लुधियाना हाईवे में फगवाड़ा आता है, इसलिए लेफ्ट में, बोला इधर चलो। इट वॉज अ मडी वे, निकलो नीचे उतरो। गुरुजी जानी जाना क्या, तो नीचे उतर गए, थोड़ा सा 1/2 किलोमीटर वो मड्डी रोड पर चले गए, तो गुरुजी ने दरवाजा खोल के निकल गए। गुरुजी पता नहीं कहाँ गए, क्या है, क्या पूछे गुरुजी से कहाँ गए। तो हम ऐसे बैठे हैं, 20-25 मिनट हो गए। देन वी सा गुरुजी accompanied by an old famished couple। हम निकल गए, भाई आइए गुरुजी को बैठिए। मैंने वो कहा क्या बात है। बोला सब हम गरीब लोग हैं, गुरुजी के बारे में बहुत सुना है, बट वी आर नॉट इन अ पोजिशन टू गो टू मंदिर। तो एक मिरेकल हुआ, हमें सोच ही रहे थे गुरुजी के बारे, श्रद्धा से सोच रहे थे। गुरुजी ने हमारा ये गरीब घर ब्लेस किया, एंड विथ ग्रेट इमोशंस गुरुजी ने, मतलब दैट वाज ए ग्रेट नेचर ऑफ गुरुजी। और गुरुजी का क्या था, कभी कभी कल्याण करते थे, अगेन स्मॉल लोगों को भी, विथ ग्रेट सेंस एंड ह्यूमर। एक बार मैं दफ्तर में बैठा हूँ, करीब 11 बजे ए जेंटलमैन कम्स टू मी, बोला गुरुजी याद करते हैं। चलो ठीक है। तो हार्डली डिस्टेंस कुछ नहीं थे जलंधर में, मे बी 1 किलोमीटर दूर था वहाँ से। तो मैं गया था, दोपहर का टाइम तो मे बी 11 साढ़े 11 बजे होंगे। बोला आओ काजी अंकल। वो क्या था, गुरुजी का मेन था मंदिर का मेन हॉल, उसके साइड में 2 कमरे, पीछे का फ्रंट का। पीछे का था गुरुजी बेडरूम, और सामने का था, उसको बोलते थे ऑपरेशन थिएटर। वहाँ क्या गुरुजी कहते पान के पत्ते का इलाज करते थे चम्मच से। बेसिकली बस गुरुजी ब्लेसिंग ओनली, लोगों को ना ये करना चाहिए। वो गुरुजी वहाँ बैठे थे ऑपरेशन थिएटर में। बोला आ काजी अंकल, तू कहता ना यहाँ खाली अमीर लोग आते हैं, अब तो दसो अपनी कहानी। वो लड़का था, बोला सर मैं चंडीगढ़ से आया हूँ, मैं सब्जी वाले का बेटा हूँ, मेरा बाप सब्जी बेचता है, मैं ड्राइवरी करता हूँ। तो मुझे क्या हुआ, मुझे टोटल हार्ट ब्लॉकेज हुआ। तो सबने कहा महंगा इलाज है, इवन PGI चंडीगढ़ ऑल्सो दे वर्चुअली डिस्कार्डेड मी बिकॉज ऑफ माई एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट। मगर फिर गुरुजी के शरण आया मैं, गुरुजी टोटली कंप्लीटली क्योर्ड मी। तो अब मैं आता हूँ वंस इन 6 months, मैं आता हूँ चंडीगढ़ से जलंधर, वो पान के पत्ते लेकर, वंस इन 6 months में गुरुजी की हाजिरी लगाता हूँ। फिर बोले, गुरुजी ने कहा अब ये कहता मेरी शादी कर लो, और मैंने कहा गुरुजी ने शादी नहीं की, तू कैसे शादी करेगा। मतलब ग्रेट सर्विस, ग्रेट वैल्यूज, ग्रेट थिंग ऑफ गुरुजी।